हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इसकी PDF ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਣੇ, ਤਿੰਨ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਈ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, मतलब टोटल 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਣੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ 6 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈंने ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मैंने डिटेल ਥਿਊਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ ਵੀ ਅੱਗੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SCC, ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਜਦ ਕਿ ਨॉन ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮਸ ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ FCC, ਇੱਕ VCC ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ECC, ਐਜ ਸੈਂਟਰ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ठीक है, न्यूमैरिकल 4 टॉपिक्स तो बनते हैं, 4-5 टॉपिक्स तो किहड़े टॉपिक्स ने। ठीक है, सब तो पहले होंगे फॉर्मूला मेकिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा होंगे अपने को रिलेशन बिटवीन A एंड R। ठीक है, A की होंगे अपने को एच लेंथ, R की होंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, उस तो बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 मार्क्स का न्यूमैरिकल बनना अपन वो आएगा अपने को डेंसिटी ऑफ यूनिट सैल तो। ठीक है, कन्फर्म क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का डेंसिटी ऑफ यूनिट सैल तो ही आना है। ठीक है, उस तो इलावा रेडियस रेशियो तो 2 मार्क्स आ सकता है, वॉइड्स तो 2 मार्क्स आ सकता है, तो रिलेशन बिटवीन A एंड R तो 2 मार्क्स आ सकता है। मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਐਜ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਊਬਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਚੈਪਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕਲ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, SCC ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8 ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/8। ਸਿਮਿਲਰਲੀ BCC ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮਸ ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮਸ ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪਲੱਸ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, मतलब 6 ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ 6 ਫੇਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 12 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 12 ਐਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ SCC, BCC ਐਂਡ FCC ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਕਾਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਕਾਰਨਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ 8 ਐਟਮਸ ਨੇ,
क्योंकि एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एक एटम एक क्यूब के अंदर सिर्फ 1/8 पार्ट है, मतलब अपने को 8 कॉर्नर ने तो एक एटम का 1/8 पार्ट ही अपने को एक क्यूब के अंदर है, एक यूनिट सैल के अंदर है। तो इफेक्टिवली कितने एटम्स आए, Z=1 फॉर SCC। सिमिलरली BCC FCC के केस की होगा 6 अपने को फेस सेंटर होंगे ने, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होंगे 1/2 प्लस 8 की होंगे ने अपने लिए कॉर्नरस तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होंगे 1/8। तो इफेक्टिवली Z कितना हो जाएगा इस केस के अंदर अपने को 4। ठीक है, ये अपन वैल्यूज ध्यान आनी चाहिए ने। ठीक है, एक मार्क्स लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक मार्क्स के अंदर। ठीक है, सिमिलरली बॉडी सेंटर के अंदर Z कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लीयर होना चाहिए अपन। जे आप गल करिए ECC ली, ठीक है, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सैल ली, तो उस अंदर एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे ने, एज सेंटर प्लस कॉर्नर से। एज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होंगे 12 एजेस होंगे ने, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 प्लस 8 कॉर्नर होंगे ने, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। तो इफेक्टिवली कितने एटम्स आएगा अपन को 4 आ गए। Z=4 फॉर ECC। ठीक है, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सैल। उस तो बाद जो अपने को न्यूमेरिकल बनता है डैट इज़ फॉर्मूला मेकिंग से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ईजी क्वेश्चन होंगे ने। जिस तरह देखो कोई कंपाउंड है, सपोज अपने को CO2 है। ठीक है, CO2 का मतलब की है अपने को एक एटम किस देगा कार्बन का, 2 एटम किस दे ने अपने को ऑक्सीजन के। मतलब एक फॉर्मूले के अंदर यह की दसदा किन्ने इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ने। ठीक है, हम देखो जिमें कोई कंपाउंड है, ठीक है, A एंड B एटम्स तो मिलकर बनेगा। A एटम्स कितने प्रेजेंट ने कॉर्नर से, मतलब किन्ने एटम्स ने अपने को कॉर्नर से 8 कॉर्नर ने, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस B एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। ठीक है, B फेस से प्रेजेंट है 6 फेस ने, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/2। ठीक है, तो फार्मूला की बन जाएगा अपने को AB3। ठीक है ना, फार्मूला की बन जाएगा AB3। ठीक है, तो इस तरह न्यूमेरिकल थानू एक मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला मेकिंग। उस तो बाद देखो आ क्वेश्चन डिस्कस करो। ठीक है, ये क्वेश्चन की कहता अपने को एन आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स A एंड B। ठीक है, एक एटम A है, एक एटम अपने को B है। ठीक है, हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच A एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ठीक है, A एटम्स कॉर्नर से प्रेजेंट नहीं हुई एंड B एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। ठीक है, इफ वन ऑफ द एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर। देखो अपने को कॉर्नर्स कितने होंगे ने 8 होंगे ने। ठीक है, बट एक कॉर्नर की मिसिंग है, तो हम कॉर्नर कितने बच गए अपने को 8 - 1 7 कॉर्नर बच गए। ठीक है, तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होंगे 1/8। ठीक है, तो A एटम्स कितने हो गए 7 × 1/8। ठीक है, B एटम्स कितने प्रेजेंट ने अपने को फेस के सेंटर से। ठीक है, 6 × 1/2। ठीक है, तो फॉर्मूला की बन गया A 7/8 × B3। ठीक है, बट फॉर्मूला कदे भी फ्रैक्शन च नहीं हो सकता। ठीक है, तुम देखिए कदे फॉर्मूला फ्रैक्शन च, जिस तरह आप ग्लूकोज पढ़िए C6H12O6। ठीक है, सारे की ने होल नंबर्स ने। ठीक है, CO2 H2SO4। ठीक है, HNO3। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज की होंगे सिंपल रेशियो होंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो इनकरैक्ट है, इसनों करैक्ट करने अपने एक नंबर नाल मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जिसने आप इसकी फ्रैक्शन खत्म कर सकीए, तो आप दोहां 8 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। जो आप 8 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 × 8 × B × 3 × 8 का फॉर्मूला की बनेगा A7B24। ठीक है, एक ही आ जाएगा, इसका करैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जोड़ा कि अपन एक्सप्लेन भी कर रखा है। उस तो बाद जो आप डिस्कस करिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चनस ने। ठीक है, ये तुम सॉल्व करने ने, जिसनों भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, जिसनों किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होंगे। ठीक है, टैलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट करो। ठीक है, मैं खुद सॉल्व करके उन्होंने समझा दूंगा। ठीक है, टैलीग्राम ग्रुप के अंदर ही। ठीक है, टैलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से दे देंगे तो कमेंट सैक्शन भी दे देंगे। ठीक है ना, तो टैलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है ना, अज ही मैंने बनाया नाम ग्रुप। उस तो बाद जो अपने को कॉन्सैप्ट आता है देखो, नैक्सट आप डिस्कस करना है हाँ रिलेशन बिटवीन A एंड R। ठीक है, A एंड R के अंदर रिलेशन। ठीक है, ए का की मतलब होंगे एज लेंथ। जिस तरह अपने को क्यूबिकल शेप की होंगी है एक यूनिट सैल होंगी है, जी उसकी एक साइड है A। ठीक है, उसमें आप बोल देंगे एज लेंथ। R की होंगे एटम का रेडियस। ठीक है, जिसने ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करना अपने ऑलरेडी यूट्यूब पर
सॉलिड स्टेट कंप्लीट पढ़ा रखे उस च जाके देख सकते हैं। ठीक है, SCC के अंदर रिलेशन की होंगे अपने को, तो 3 रिलेशन याद रखने ने, SCC का, BCC का ते FCC का। ठीक है, SCC के अंदर A = 2R होंगे, BCC के अंदर √3A = 4R होंगे, तो FCC के अंदर √2A = 4R होंगे। ठीक है, 3 रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, मैंने डिटेल के अंदर अपने यूट्यूब वीडियो ते बना रखे हैं। ठीक है, यूट्यूब उत्ते मैंने सॉलिड स्टेट 5 वीडियो के अंदर खत्म किया हुआ है, उस अंदर मैंने इसमें डिटेल समझा रखा है। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट है, ठीक है, इसके बेस ते न्यूमेरिकल। ठीक है, जिस तरह अपने को FCC देता, ठीक है, FCC लिए रिलेशन होंगे अपने को भाई √2A = 4R। ठीक है, तो अपन को दिता है, ठीक है, एज लेंथ दे रखा, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है, तो अपने तो आर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सिंपली क्या जाएगा √2 × 620 = 4R। ठीक है, आर की वैल्यू की आ जाएगी √2 × 620 / 4। ठीक है, आर कितना आ जाएगा अपने को 290.2 पिकोमीटर। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पेपर के अंदर सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होंगे, तो चिंता नहीं करनी। ठीक है ना, न्यूमेरिकल सिंपल कैलकुलेटर अपन अलाउड होंगे। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होंगे, बट सिंपल कैलकुलेटर अपन अलाउड होंगे, इसलिए यही न्यूमेरिकल, ठीक है, एक्यूरेटली आप सॉल्व करके आना है। ठीक है, उस तो बाद, ठीक है, इसी फॉर्मूला ते बेस भाई 2 क्वेश्चन ने। ठीक है, ये सॉल्व करने तुझे खुद। ठीक है, इन दोनों के आंसर मैंने कमेंट सैक्शन च कमेंट करियो, देखते किस के आंसर करैक्ट आते हैं। ठीक है, उस तो बाद एक टॉपिक होंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ਜਾਂ इसनों आप पैकिंग फैक्टर भी बोल देंगे। इसनों आप पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फैक्टर बोल देंगे। ठीक है, इसमें मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल नहीं पढ़ा रहा। ठीक है ना, जो मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर, ठीक है, अपना सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट करवा रखा है टॉपिक। ठीक है, जिससे मैंने दसा जी SCC पैकिंग एफिशिएंसी 52%, FCC की 74%, BCC की कितनी आती अपने को 68%। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर डेरीवेशनस थोड़े पेपर च आंदियां नहीं, तो मैंने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी करवा रखे नहीं। उस तो बाद आप डिस्कस करते हैं जो सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भाई बन सकता न्यूमेरिकल। ठीक है, वॉइड्स तो, ठीक है, उस तो पहले आप देख लेना वॉइड्स होंगी है कि नहीं। देखो जो आप एटम्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, एटम्स की शेप के होंगे अपने को स्फेरिकल शेप के होंगे। ठीक है, जो आप एटम्स को अरेंज करांगे इस तरह, ठीक है, जो आप अरेंज करांगे, ठीक है, कुछ खाली स्पेसेस, ठीक है, बच जाते हैं। ठीक है, इन्होंने आप की बोल देंगे वॉइड्स बोल देने, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ। ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਜਾਂ ਵੋਇਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੋਇਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ 3 ਐਟਮ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਐਟਮ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡ। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की है जो आप 3 एटम एक प्लेन च रख दिए। ठीक है, 3 एटम इसके ऊपर रख दिए इस तरह। ठीक है, उरे भी कुछ की आ जाएगी खाली स्पेस बच जाएगी, जिसमें आप बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट गल की है जी टैट्राहेड्रल वॉइड है वो 4 एटम्स तो मिलकर बनती है, जी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की है वो 6 एटम्स तो मिलकर बनती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट गल नहीं हैगी। ठीक है, तो थोड़ी नॉलेज ली है कि टैट्राहेड्रल वॉइड्स की होंगे ने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की होंगे ने। ठीक है, न्यूमेरिकल कितों ने आ वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, की कहते हैं फॉर्मूलाज, इसनों आप डिस्कस कर देंगे। ठीक है, किसी यूनिट सैल के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट ने, कितने टैट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट ने, उसनों कैलकुलेट करने लिए अपने को 2 फॉर्मूलाज होंगे ने। देखो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे ने वो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ने यूनिट सैल के अंदर, उस पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह आप FCC सिस्टम की गल करिए, ठीक है, FCC लिए कितने एटम्स होंगे एक यूनिट सैल के अंदर 4। ठीक है, 4 एटम्स होंगे ने, तो उन्ने ही की होंगे अपने को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। ठीक है, तो की लिख रखे अपने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सैल। हम नंबर ऑफ टैट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। ठीक है, टैट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा डबल होंगे ने किस तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो। नंबर ऑफ टैट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, सपोज करो अपने को, ठीक है, रैंडमली सपोज करो अपने को 5 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं है। ठीक है, अपने को 5 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं सपोज करो, तो नंबर ऑफ टैट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। ठीक है, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 की होंगे अपने को टैट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है, टैट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टैट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा कितने ने डबल होंगे ने एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
ठीक है। इस दे बेसिस ते कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल ने इस दे बेस ते, ठीक है। पेपर 'ਚ जे आंदे ने ਉਹੀ न्यूमेरिकल आउणगे, ठीक है। उस तो इलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आना ਜਿਹੜੇ कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ठीक है। ये दोहे न्यूमेरिकल आएंगे जो पेपर 'ਚ आएंगे, इस तो इलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है ना। देख लो पहला क्वेश्चन की कहता है, ठीक है। थ्योरी बाद में पढ़ लियो, ठीक है, पहले मैं समझा दूँ, ठीक है। कंपाउंड इज फाउंड बाय एक्स एंड वाई एलीमेंट, ठीक है। एक एटम एक्स है, एक वाई है, ठीक है। एटम्स ऑफ एलीमेंट वाई, ठीक है, मेक CCP, ठीक है, मेक CCP, ठीक है। हमेशा CCP बना रहे हैं मतलब एंड एलीमेंट्स ऑफ एक्स ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ਹੁਣ देखो CCP ਬਣਾਉਣ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, CCP ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ FCC ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਈ, ठीक है। CCP ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, FCC ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ठीक है। CCP ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। FCC ਹੁੰਦਾ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। ਦੋਹਾਂ ਦਾ मतलब सेम ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ CCP ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ FCC ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, मतलब ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ FCC ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ X ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਹੋਣਗੇ, ठीक है। क्यों, क्योंकि X ने की ऑक्यूपाई किया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किन्ने होंगे ने, जिन्ने अपने को नंबर ऑफ एटम्स होंगे ने किसी यूनिट सैल के अंदर, मतलब X4 Y4, ठीक है। या इस आप लिख लो सिंपली XY, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। लिख लो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। बुक के अकॉर्डिंग करनी है, बुक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप पता नहीं की एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। इसमें ईजी वे समझो, ठीक है। 2 कंपाउंड ने एट A तो B, ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन अंदर की करे, B फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एटम्स A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। देखो सपोज B अपने को 1 मान लो, ठीक है। B की कुछ वैल्यू ना मान लो, B मान लो 1, ठीक है। हम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे अपने को, ठीक है। देखो जो अपना B है, B ने लैटिस बनाया मतलब ऑक्टाहेड्रल बनाएगा उसने, ठीक है। B सपोज 1 मान लो, ठीक है। तो A कितना होएगा अपने को, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 2, ठीक है। तो 2 का कितना 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 हिस्सा, दैट इज 2/3, मतलब A4/3 B1, या इसमें लिख लो A4B3, ठीक है, A4B3, ठीक है। वही क्या है अपना फाइनल आंसर आएगा, ठीक है जी। बुक की एक्सप्लेनेशन देख रहे बुक की देख लो, या सिंपल अपना फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो उरो अपन क्लीयर होया, अपन एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ये बस फॉर्मूला अपने ध्यान रखना है, अपने सारे कॉन्सैप्ट की हो जाएंगे क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखते हैं अपना की टॉपिक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियस रेशो, ठीक है। ऑल्दो ये टॉपिक पहला इंपॉर्टेंट नहीं सी, बट क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, सैंपल पेपर के अंदर, ठीक है ना। 2-3 सैंपल पेपर देखे मैंने, 2-3 रेडियस रेशो तो क्वेश्चन आया पाएगा, इसका मतलब ये टॉपिक अपन करना पैना है, ठीक है। रेडियस रेशो का की मतलब होंगे, देखो जो अपने को आयनिक कंपाउंड होंगे कोई, ठीक है, आयनिक कंपाउंड होंगे आयंस तो मिलकर बनया होगा, ठीक है। आयंस तो अपने को एक होंगे पॉजिटिव चार्ज आयन, एक होंगे अपने को नैगेटिव चार्ज आयन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आयन आप बोलते हैं कटायन, नैगेटिव चार्ज आयन आप बोलते हैं अनायन, ठीक है। हम दोहां का कुछ की होंगे रेडियस होंगे, ठीक है। तो रेडियस रेशो की होंगे अपने को रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है। अपने 2 वैल्यूज याद रखनी है, वाली ध्यान रख लो, ठीक है। अपने को NaCl ली, ठीक है ना, जी रेडियस रेशो की वैल्यू होंगी 0.4142 लैके 0.732 होंगी है, तो टैट्राहेड्रल जी ZnS ली होंगी है, ठीक 0.225 तो लैके 0.414, ठीक है। ये भी 4 वैल्यूज याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तो कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं हैगी, ठीक है, ये तो जरूरी नहीं हैगी, बट आ 3 वैल्यूज तो ही याद रखनी नहीं, ठीक है। 0.225 तो लैके 0.414 तक अपने को होंगे टैट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। 0.414 तो लैके 0.732 तक होंगे अपने को ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 0.732 तो लैके 1 तक होंगे अपने को क्यूबिकल वॉइड या बॉडी सेंटर, ठीक है। इसमें लिखो क्यूबिकल वॉइड, ठीक है, इसमें लिख लो क्यूबिकल वॉइड, ठीक है ना। इसके बेस से कुछ न्यूमेरिकल कर देंगे तो जो अपना ये कॉन्सैप्ट की हो जाए क्लीयर हो जाए। एक मिनट न्यूमेरिकल इसते भाई इस दिन न्यूमेरिकल शायद मिस हो गए, ठीक है। 1 मिनट में लिखता फिर आप डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये न्यूमेरिकल डिस्कस करने का, ठीक है। इस न्यूमेरिकल जो अपने को AB कंपाउंड है उसका NaCl स्ट्रक्चर है, हमने आप डिस्कस
ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ NaCl ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 0.4142 ਲੈ ਕੇ 0.732 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਨਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਟਾਇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 170 ਪਿਕੋਮੀਟਰ। ठीक है, रेडियस ऑफ अनायन क्वेश्चन के अंदर की अपने तो पूछा गया तो उसने क्या है कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मतलब आर नैगेटिव मैक्सिमम होने ली। ठीक है, रेडियस रेशियो की होना पऊगा मिनिमम होना पऊगा, क्यों आर नैगेटिव की है अपने को 170 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस रेशियो। हम रेडियस रेशियो की दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो 0.414 ले सकते ਆਪਾਂ ਜਾਂ 0.732 ले सकते हैं। ठीक है, दोनों कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट क्वेश्चन के अंदर की पूछेगा रेडियस ऑफ अनायन जो आर नैगेटिव की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। जो अपन आर नैगेटिव मैक्सिमम करना है तो रेडियस रेशियो की करना पऊगा मिनिमम करना पऊगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी अपने को 0.414। तो रेडियस ऑफ अनायन कितना आ जाएगा 170 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 0.414। ठीक है, तो आर नैगेटिव की कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने को 410.6 पिकोमीटर। ठीक है, इसमें सॉल्व करके ठीक है आर नैगेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 410.6 पिकोमीटर। ठीक है जी, अपने को इसी क्वेश्चन अंदर उरे मिनिमम पूछ लेंदा वट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अनायन। तो आप की करना सीगा 170 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 0.732 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है ना, तो ये वाला आंसर आना है जी अपने तो क्वेश्चन अंदर मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अनायन पूछता। ठीक है, इस बेस से सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा ये अपने डिस्कस कर लिया। बाकी अपन जी रेडियस रेशियो की वैल्यूज याद रखिया सीगियां वो अपने ध्यान रखने ने। ठीक है ना, ये वाला सारा अपना डाटा याद होना चाहिए। ठीक है ना, 0.225 तो लैके 0.414 तक अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी है, 0.414 तो लैके 0.732 तक अपने को ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखे सी। ठीक है, NaCl। ठीक है जी, सीजियम क्लोराइड आता तो आप वैल्यू कि लवेंगे 0.732 तो लैके 1 तक। ठीक है जी, ZnS होंगे तो आप कि वैल्यू लवेंगे 0.225 तो लैके 0.414 तक। ठीक है, उस तो बाद आप डिस्कस करते सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने इस चैप्टर तो। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने। ठीक है, इसमें मैंने डिटेल के अंदर ठीक है पूरा डिटेल के अंदर ठीक है कंप्लीट डिटेल के अंदर इस जो टॉपिक है इसमें मैंने ठीक है सॉलिड स्टेट की वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, मैं इसका कमेंट सैक्शन के अंदर इस वीडियो लिंक दे दूँगा। ठीक है, जब तुम खुद ही अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉलिड स्टेट की उस जाके देख लेना टॉपिक। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा डिस्कस कर देना तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन के नोट्स मैं दे देना। ठीक है, फॉर्मूला की होंगे ठीक है डेंसिटी Z/M/AQ/NA। ठीक है, Z की होंगे एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आप हुनी देखने Z=1 किस लिए होंगे SCC लिए, Z=2 फॉर BCC, Z=4 FCC सिस्टम। ठीक है, ए की होंगे अपने को एज लेंथ होंगी है। ठीक है ना, कई बार ए डायरैक्टली नहीं दिता जाता तो आपको आर दिता जाता है। ठीक है जी, आर दिता जाता तो आप रिलेशन यूज कर सकते हैं A=2R या √2A=4R या √3A=4R। ठीक है ना, 3 रिलेशन होंगे हैं। ठीक है, SCC ली ठीक है FCC ली तो BCC ली। ठीक है, उस तो अपन आर की वैल्यू तो पहले अपन ए कैलकुलेट करना पैना है। ठीक है, उस तो अलावा M की मोलर मास होंगे है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। ठीक है, तो Na की होंगे अपने को एवोगैड्रो नंबर होंगे जिसकी वैल्यू होंगी 6.022 × 10⁻23। ठीक है, कि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, मैं सारे दिखा देना। ठीक है, जिस तरह पहला क्वेश्चन है ठीक है मास देता अपन ठीक है एटॉमिक रेडियस देता भाई सीधा ए नहीं दिता अपन आर दिता। ठीक है, तो FCC सिस्टम देता। ठीक है, FCC लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने को 4 हो जाएगी तो √2A=2 की होंगे अपने को 4R होंगे। ठीक है, पहले तो आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिस तरह क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट की है ए की वैल्यू कैलकुलेट की है, फिर अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमेशा जो अपने को लेंथ होंगी है एज लेंथ उसमें अपने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मैं दस देना जो तुम पिकोमीटर दिता होएगा तो 10⁻10 सेंटीमीटर होंगे ने। ठीक है जी, इसमें नैनोमीटर दिता होएगा तो 10⁻7 सेंटीमीटर होंगे ने। जो एंगस्ट्रॉम दिता होएगा अपन तो 10⁻8 सेंटीमीटर होंगे ने।
ठीक है, रिलेशन याद रख सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, बाकी सारे न्यूमेरिकल देख लो एक बार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, एनसीईआरटी बुक तो मैंने ले। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, खुद सॉल्व करो, देखो तुम बनते नहीं। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल। ठीक है, सारे एक बार तुम ट्राई करो, जिस भी न्यूमेरिकल अंदर डाउट है। ठीक है, टैलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है, टैलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट करो। ठीक है, मैं उसको कंप्लीट सॉल्व करके तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, हाल तक अपना ग्रुप नहीं सीखा, बट हम अपने टैलीग्राम ग्रुप पर बना लिया, तो उसकी आप डाउट्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਲਕੇਂਸ ਤੇ ਹੈਲੋ ਰੀਨਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।